we were doing the chapter directing, and in the very initial I have done what is directing first. Then second is characteristics or features of directing. फीचर्स आपके चार हैं एंड चारों के चारें बहुत इजी हैं, मतलब दे नॉर्मली कम इनटू द आइडेंटिफिकेशन, लाइक इट इनिशिएट्स एक्शन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है. विदाउट गिविंग यू द गाइडेंस यू कैन नॉट स्टार्ट अ वर्क और यू कैन नॉट कंप्लीट इट एज यू वांट. अगर आप स्कूल में भी पहुंच गए, से यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, तो unless until your teacher doesn't tell what are your books, what will you be studying, what will be the mode of your examinations, आप कैसे काम करोगे? So that means it initiates the it initiates action. Then all the functions of management takes place at every level of management. It is pervasive. That is why we call that management functions are pervasive. Yes, the in-depth intensity will differ. It is a continuous process. मतलब एक ये नहीं है that would, जब तक कंपनी है all the functions are going to be performed, so direction will also be there. Then last but not the least is it flows from top to bottom, यानी कि हम डायरेक्ट करते हैं, टीचर्स विल डायरेक्ट यू, यू कैन नॉट डायरेक्ट योर टीचर्स. एक सिंपल एग्जांपल अपने से कोरिलेट कर लेना. Then we have done the importance. Then I told you that in our direction we have four elements: motivation, then leadership, communication and supervision. अब जो इसमें लिखा हुआ है इसके अलावा आपके सिलेबस में कुछ नहीं है. सो डोंट गो थ्रू द ओल्ड बुक्स, क्योंकि पहले बहुत कुछ था. This chapter was a very long chapter, but right now you have supervision. But supervision may only what is supervision. You will not be having the qualities of a good supervisor as it is given in the books. It is not there. Supervision means to look from the top. It is on the third level. आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड जो फोरमैनशिप है वहां आपका सुपरवाइजरी लेवल आ जाता है. देन मोटिवेशन. In the motivation we have already studied what is the theory of Maslow. Then what are the financial incentives that a company needs to give. अब किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों रहते हैं. Why? See, your marks are your financial, जो डायरेक्टली आपके रिपोर्ट कार्ड में आते हैं. लेकिन कभी कभी आप क्लास के लिए कुछ अच्छा काम करते हो एंड यू बिलीव योर टीचर शुड एटलीस्ट प्रेज यू. इन दिस कंपनी ऑल्सो देर आर सर्टन एरियाज जहां हम उम्मीद करते हैं दैट द कंपनी एक्नॉलेजेस हमारी जो कंपनी है वो हमारे उस एफर्ट को एक्नॉलेज करती है. एंड इन डिफरेंट कंपनीज देर आर डिफरेंट स्कीम्स. अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है नॉन फाइनेंशियल, मतलब नॉट दैट ऑल द नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय मनी. समटाइम्स वी हैव द what we call as psychological needs, social needs, our emotional needs, and इन levels को non financial पूरा करती. How? Let us come to the first point. Employees recognition program means time to time बॉस ने कंग्रेचुलेट किया टीम वर्क में, और certain times this company may give you certificate, and this is very very common. This installing the award or certificate for best performance is very right now it is working like a magic. मेरे एक स्टूडेंट है, द गर्ल हु इज राइट नाउ वर्किंग इन एमएक्स बैंक, मतलब अमेरिकन में है. तो व्हेन शी जॉइंड, तो शी गॉट दिस 3 months के बाद हर परफॉर्मेंस वाज वेरी नाइस. सो शी वाज गिवन अ बैच, उसको एक बैच दिया गया था प्लस एक सर्टिफिकेट दिया था एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर. देन मे बी इन सम ऑफ द कंपनीज
लाइक इन द स्कूल्स, जहाँ मेरी सिस्टर का बेटा पढ़ता है उनके स्कूल में क्या होता है, जो बेस्ट टीचर होती है फॉर द मंथ, उनका जो नाम है वो बोर्ड पे लगाया जाता है, सो दैट द पेरेंट्स, द टीचर्स, दे कम टू नो, दैट्स एन एक्नॉलेजमेंट। टीचर्स सब मेहनत करती हैं, ऐसा नहीं है, नो आई कैन नॉट, एटलीस्ट एज अ टीचर आई कैन नेवर से सामने वाला टीचर कम मेहनत कर रहा है, because I'm also a teacher and I know certain times I may not be appreciated, sometimes I may be appreciated, लेकिन कंपनीज में, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, what they do is they put the name, ये वाला जो स्कीम है, this is more likely done in KFCs and McDonald, ये पेपर का क्वेश्चन है, this is a question of the paper, that McDonald installs the name of the employee, name of the employee for the month on their notice board. What kind of incentive is it? Explain. तो इंसेंटिव हमारा नॉन है, नॉन फाइनेंशियल, एंड इसको एक्सप्लेन करना है एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, यानी कि हम एम्प्लॉय को उनके एफर्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं, समटाइम्स गिविंग मेमेंटोज, टी शर्ट्स, अलग अलग, मतलब कंपनी के अंदर देर आर पॉलिसीज, और ये हर कंपनी में जो है अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं, दे हैव देयर पॉलिसीज, some of the companies have display on the notice board, sometimes they reward, sometimes they may congratulate, sometimes they may give a certificate. अगर आप में से कोई भी बच्चा HDFC बैंक दिलशाद गार्डन जाएगा, उसमें ये वाला जो प्रोग्राम है दिस इज देयर, क्योंकि वो अपने जो उनका जो वहाँ जो कैशियर बैठते हैं, उनके पीछे, टेलर के पीछे लिखा होता है, दे गिव दिस रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट। कभी अगर आपको मौका मिले आफ्टर दिस पैंडेमिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पैंडेमिक, इफ यू हैव द टाइम, गो एंड सी, यू विल फाइंड वो लगे होते हैं सर्टिफिकेट्स। सो दिस इज हाउ द रिकॉग्निशन इज डन। अब इसमें हमारा पैसा नहीं था, लेकिन एक इमोशनल फैक्टर जो है ना, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था कि माई कंपनी रिकॉग्नाइजेज माई एफर्ट्स, so that would motivate you to do better. Job security. Every person who works in a company, definitely छोड़ना एक अलग बात है, बट कोई भी कंपनी, कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उनकी जो कंपनी है उनकी ऐसी पॉलिसीज हो जहां नौकरी से निकाल दिया जाता है। देयर इज वन नेगेटिव। तो अगर उनको लगता है कि द कंपनी इज हैविंग सच सिक्योर्ड, मतलब आपको अगर जॉब से निकाला जाएगा तो इतनी आपको जो है, यू विल बी गिवन दिस मच ऑफ टाइम, दिस इज द पॉलिसी, देन वर्क करना आसान होता है। एक डर में आप बैठ के नहीं काम कर सकते, बट एट द सेम टाइम इफ द कंपनी, यस बिल्कुल, हाँ, यस, दिस इज राइट। बट एक इसका नेगेटिव होता है कि अगर कई सी कंपनी में जॉब सिक्योरिटी है, लाइक गवर्नमेंट में होता है कि नौकरी से कोई नहीं निकालता है, तो कई बार क्या होता है, लोग थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, बट दैट डज नॉट अ वेरी, यू कांट कॉल इट एज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट, वो तो हर जगह पे होता है, बट ऑन द वेर एवर यू आर वर्किंग द कंपनी, आप पहले के रिकॉर्ड्स चेक करो, कितने दिन में नौकरी छोड़ा लोगों ने। अगर एम्प्लॉयज एब्सेंटिज्म ज़्यादा है, दैट मीन्स द कंपनी इज नॉट गिविंग प्रॉपर पॉलिसी। इसका एक एग्जाम्पल है, एक स्कूल है रोहिणी में, वेरी फेमस स्कूल, माउंट आबू पब्लिक स्कूल, इट्स अ वेरी, मतलब कि बहुत है, बट उनकी स्कूल का एक रॉन्ग पॉलिसी है दैट दे डोंट कीप द टीचर्स फॉर लॉन्गर पीरियड, और इसीलिए कम स्कूल कितना भी रोहिणी में है, बहुत अच्छा है, उनका लोकेशन बहुत अच्छा है, द कम, बट अगर आपके स्कूल में टीचर्स चेंज होंगी और वो भी अगर हायर लेवल में चेंज होंगे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमारे एलपीएस में भी दिस प्रॉब्लम वाज देयर। क्योंकि अगर स्कूल में टीचर्स बार बार चेंज होती हैं, तो दैट शोज दैट द कंपनी, द स्कूल इज नॉट कीपिंग गुड पॉलिसीज टू होल्ड देयर टीचर्स, यानी कि उनकी सैलरी, उनके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स नहीं दे रहे।
So job security is very important. Third, career एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि टाइम टू टाइम कंपनी में ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए लाइक प्रमोशन. तो प्रमोशन कैसे होगा? कुछ कंपनीज में तो एक स्टेटस बना हुआ है, 3 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा. बट आजकल इन द मॉडर्न टाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट. In the modern times, the promotion is done on the basis of the targets you achieve. So promotion is a tonic. तो आपको अपना परफॉर्मेंस, तो यानी कि कंपनी में ऐसे पॉलिसीज होने चाहिए जिसमें हम अपने आप को प्रूव करें. हाउ विल यू प्रूव? ओके, आपने ज्वाइन किया एज अ ब्रांड, ब्रांड मैनेजर. ठीक है, आपने ज्वाइन कर लिया, बट नाउ यू वांट दैट आपका नेक्स्ट लेवल पर आप जाओ, तो कैसे करोगे? कंपनी आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी देगी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने को, अपने स्किल्स को प्रेजेंट करने को. देन ओनली इट इज पॉसिबल. दिस कैन बी डन विद द नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन. एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन आपके दो तरीके से होते हैं. एक, आपका जहां यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी, एंड सेकेंड इज there might be committees, safety community, women community, canteen community, and इसमें the top level normally doesn't come. अभी हम लोग लीडरशिप पढ़ेंगे ना, मैं उसमें बताऊंगी आपको. इसमें टॉप लेवल नहीं आता है. दिस इज गिवन टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स, या उनसे भी नीचे उनको दे दिया जाता है. एंड दे आर इंश्योर्ड कि वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करें. लाइक इन एवरी कंपनी नाउ इट इज मस्ट कि विमेन सेफ्टी को लेकर कमेटी बनाई जाए. नाउ इट इज गवर्नमेंट रूल, इट्स मैंडेटरी. अब उसमें उस कमेटी के अंदर आप किसको लोगे? तो यू विल सी, आप देखोगे जो अच्छा काम करता है, द पर्सन हु इज मोर इन्वॉल्व. विमेन का तो होना जरूरी है, प्लस मेन आर ऑल्सो देयर, ताकि अगर उनके साथ किसी भी तरीके का हरेसमेंट होता है तो दे कैन गो एंड कॉन्टैक्ट दैट कमिटी. तो उसमें हम एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने का जो है उनको ओपन देते हैं. दोज हु वांट टू वर्क फॉर दिस, दे कैन जॉइन. स्टेटस in the organizational concept, status means ranking in the positions. आपको पता एक टाइम था हम कहते थे the person is a manager, the person is a clerk. Now we don't call. Now these, ये रैंकिंग जो है ना, इनको हम अलग करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स. तो जब आप हिरार्ची बनाते हो, व्हेन यू मेक दिस हिरार्ची, किस लेवल पर कौन काम करता है, द अथॉरिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिवॉर्ड, द recognition, the prestige of job indicates the status given to a person holding a managerial position. तो आप उनको किस स्टेटस पर कितना आप दे रहे हो. Why people want to join as middle level or senior level manager? मैंने तो कभी किसी भी बच्चे से, चाहे वो बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, मैंने कभी नहीं सुना कि वो ये बोलता हो कि नहीं ठीक है मैम मैं एग्जीक्यूटिव की तरह ज्वाइन करूंगा. एवरीवन वांट्स मैम मैं तो मिडिल लेवल में ज्वाइन करना चाहता हूँ. व्हाई? व्हाई? why this is there? अभी as I was telling you that in the morning I was having a session, तो जो बच्चा था he did not know anything, and he told me मैम अगर आप मुझे 4 साल पहले मिले होते ना तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता. मैंने कितनी गलत कॉलेज में लिया, मुझे मतलब किसी बच्चे ने लिया था, उसने उसको बताया था. तो he told me कि मैम मुझे अगर आप मुझे, ही इज़ फ्रॉम अर्वाचीन ओनली, तो ही टोल्ड मी मैम मेरे को 4 साल पहले किसी ने नहीं बताया था कि आपको कॉमर्स के बाद आप इस कॉलेज के अंदर अप्लाई कर सकते हो. वी वर नॉट टोल्ड दीज थिंग्स. हम लोगों को इस तरीके से नहीं पता था, तो मैंने तो ऐसे ही भर दिया था. आई नेवर न्यू ये भी होते हैं. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या करना है तुम्हें? कहता मैम मेरे को तो ब्रांड मैनेजर बनना है. तो व्हाट इज ब्रांड मैनेजर? Question comes, what is brand manager and why brand manager? Because
ब्रांड मैनेजर इज अ स्टेटस। एंड उससे रिलेटेड नेचुरल है कि हर कंपनी में इफ यू आर इन द ब्रांड मैनेजर लेवल, यू आर इन दिस लेवल, तो आपको कुछ, यू विल बी गिवन सम रिवॉर्ड्स, यू विल बी गिवन सम अथॉरिटी। हर एक इंसान चाहता है कि मेरे पास एक अथॉरिटी हो। हर एक इंसान चाहता है कि उस वो एक ऐसे पोजीशन में हो जहां उसके नीचे 4 जने काम करें। तो द कंपनी शुड ऑल्सो मेक सच पॉलिसीज। जॉब enrichment. What is the difference between promotion and job enrichment? Promotion increment involves money. आप जूनियर मैनेजर थे, आपको मैंने सीनियर मैनेजर बनाया, तो नेचुरल है कि जूनियर मैनेजर एक लेवल था, सीनियर मैनेजर सेकंड लेवल है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पे दे रही हूँ मैं आपको। बट व्हेन इट कम्स टू जॉब एनरिचमेंट, दैट मीन्स व्हेन यू आर डिजाइनिंग द जॉब अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द पर्सन, उनको आप ज्यादा इंडिपेंडेंस देते हो। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, कंग्रेट्स कंग्रेट्स, माय स्टूडेंट। आई एम प्राउड। तो उनको आप एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देते हो, मीन्स यू गिव देम द वर्क, आप ये काम भी करो, यू गिव दिस वर्क ऑल्सो। अच्छा, आप जो हो, यू आर लुकिंग इन टू द कैटेगरी ऑफ फूड, यू आर लुकिंग इन टू द कैटेगरी ऑफ फूड, मैं आपकी कैटेगरी के अंदर फर्नीचर भी डाल रहा हूँ, काम उसका वही है, उसका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं हुआ, उसकी सैलरी चेंज नहीं हुई है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा काम मिल रहा है क्योंकि उस पर कंपनी को ट्रस्ट है। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, आई वाज द, मतलब मैं इंग्लिश का तो काम करती थी, लेकिन उसके साथ में आई यूज टू हैव मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। लाइक हमारे स्कूल में जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता था, देन पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शंस होते थे, उनमें मेरे को कोई एक्स्ट्रा सैलरी थोड़ी मिलती थी, बट दीज वर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जॉब एनरिचमेंट था। मैं और मीनू मैम जो, मतलब द टीचर वन, देन शी वाज आल्सो इन चार्ज फॉर दिस एग्जामिनेशन, मतलब शी स्टिल इन चार्ज, शी इज इन चार्ज फॉर एग्जामिनेशन। अब हम एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं, मतलब चाहे वो नर्सरी का एग्जाम चल रहा हो, चाहे वो मतलब कि 12th का बोर्ड चल रहा हो, एवरीथिंग इज अंडर हर, शी इज नॉट पेड एनीथिंग एक्स्ट्रा। आई वॉज द HOD फॉर द हाउसिंग सिस्टम, हाउस सिस्टम हमारे यहाँ था, तो हाउस सिस्टम के सारे हाउस सिस्टम का हेड मैं थी। मेरा काम था कि हाउस सिस्टम में कौन सी टीचर रहेगी, उनको कौन सा काम करना, कौन सा महीना कौन सा हाउस है, एवरीथिंग वॉज माइन। आई वॉज इन पेड एनीथिंग, बट दैट वॉज जॉब एनरिचमेंट। तो दैट एक्चुअली प्रोवाइडेड मी समथिंग। मैं सच में कहूँ तो मुझे जॉब से ज्यादा, मुझे पैसों से ज़्यादा ये सब चीज़ों ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया था। एंड अभी मीनू मैम का अभी भी है, शी स्टिल देयर, तो शी लुक्स आफ्टर द एग्जामिनेशन, एंटायर एग्जामिनेशन, चाहे उसके लिए स्टेशनरी मंगवाना हो, चाहे उसके लिए बेंचेस अरेंज करने हो, एवरीथिंग इज हर हेडेक। तो हर कंपनी में मोटिवेट किया जाता है बाय गिविंग देम एक्स्ट्रा वर्क, बट दैट एक्स्ट्रा वर्क शुड नॉट काम चूसू। ये नहीं है कि हाँ मैं एक्स्ट्रा वर्क दे रहा हूँ तुमसे काम चूसू, नहीं, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्किल। Organizational climate, this is one of the most, you can say, complicated thing। क्यों? क्योंकि आपका जो एक कंपनी में ऐसा एक माहौल होना चाहिए जहां एम्प्लॉयज आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। इफ मैनेजर्स टेक पॉजिटिव मेजर्स रिगार्डिंग दीज एस्पेक्ट्स, तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा होता है। यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा था, करियर एडवांसमेंट, रिस्क टेकिंग, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, मतलब एक कंपनी में कैसा होना चाहिए जहां कंपनी में जो काम करता है वो खुद को अपना समझे। देयर इज ऑलवेज, मैं एक कंपनी में आई और मुझे हमेशा लगता है कि आई एम वर्किंग इन एन एलियन एनवायरनमेंट। मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे जो है नौकरी मिलेगी, जैसे गवर्नमेंट में हम काम करते तो व्हाट हैपेंस इज, हम काम करते हैं, हमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड ऑल, बिकॉज मुझे पता है हॉस्पिटल्स वगैरह में तो द डॉक्टर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। माई डॉटर अभी है ना, वो मुझे बताती है। बट
एडमिनिस्ट्रेशन में हम आए, हमने अपना काम किया, हम चले गए, नोबडी इज बॉदर्ड। अगर हमने किसी के लिए एक्स्ट्रा भी काम कर दिया ना तो वो कहते हैं हम क्या करें। बट इन प्राइवेट कंपनीज वेयर दिस वर्क कल्चर इज देयर, जहाँ वर्क कल्चर होता है वहाँ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए जहाँ हम खुद को उस कंपनी से रिलेट करें, हमें ऐसा लगे कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग फॉर द कंपनी, वी आर वर्किंग फॉर सेल्फ। मतलब खुद को होना चाहिए कि यार आज कंपनी में जाना है। और इसके लिए बड़े सारे टाइम्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अभी जैसे पैंडेमिक है, तो मैंने देखा, आई सॉ 3 एग्जांपल्स इन माय ओन हाउस, माय हस्बैंड, माय डॉटर एंड माय सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स हस्बैंड। एंटायर डेफिनेटली प्राइवेट, गवर्नमेंट में सैलरी इज वेरी नाइस, बट आप मतलब इवन इफ यू आर सेक्शन ऑफिसर, यस आपको लोग कहेंगे वाह वो तो सेक्शन ऑफिसर है, बट जो आपके, हम जिसको कहते हैं ना खुद का अपना एक डिसीजन लेना, अपनी एक ऑटोनॉमी, अपने लिए कुछ मतलब कि करना, दीज आर ऑल ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी इज देयर, गवर्नमेंट के अंदर आपको जो है सैलरी आपको टाइम से मिल जाएगा, नो बडी इज गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ द सर्विस अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम डिसिप्लिनरी एक्शन। 28 आप 58 साल तक बैठे रहो, बट ऑटोनॉमी नहीं होता। मैंने इसलिए तो जॉब छोड़ा था, वेरी वेरी फ्रैंकली, मी एंड माई हस्बैंड बोथ आर द लाइव एग्जाम्पल। एंड आई वॉज, मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ ने तो मुझे ऐसा सुनाया था व्हेन आई लेफ्ट द जॉब, बट आई फाउंड इट, यार अपना कुछ करो। मैंने तो अपने स्कूल की भी नौकरी इसलिए छोड़ी थी, नहीं तो इतनी अच्छी नौकरी, माई आई वॉज रियली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ माई स्कूल, and I was at the peak of my career when I left the job. And the reason was I wanted to do something on my own. मुझे अच्छा लगता है when I do something. When students come to me, they talk to me, they tell me about their problems. When I'm trying to, क्योंकि as a class teacher हमारा restriction होता है. And that is only possible when you are in the multinational companies. तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मैंने देखा भी, 3 एग्जाम्पल देखी। माई सिस्टर्स हस्बैंड इज इन, ही इज ऑल्सो इन अ कंपनी विच इज, यू कैन से MNC, बट पूरे पैंडमिक में उन्हें कोई छुट्टी नहीं मिली। he is going to the office at the same time in the morning and he is coming at 11 o'clock in the night, there is nothing। उनके ऑफिस में कहते हैं जिसको आप मतलब कि हो गया है वो छुट्टी लो, घर में बैठो बस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड माई हस्बैंड ऑफिस, द मोमेंट उनके ऑफिस में 4 केसेस हुए, उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया। दे गेव अ प्रॉपर नोटिस टू एवरीवन, जिसको चाहिए एवरीवन कैन वर्क फ्रॉम होम, वी डू नॉट वांट योर फैमिली और यू टू सफर। पूरे 2 साल उनके ऑफिस के अंदर 50% सैलरी थी उनकी फॉर द फर्स्ट 4 months, सिस्टर के हस्बैंड की। दे डिड नॉट गेट रिसीव, हमारी ऐसे कुछ नहीं था, टचवुड, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर, उनकी कोई सैलरी कम नहीं हुई थी। दे वर गिवन द कंप्लीट सैलरी, दे वर गिवन ऑल द बेनिफिट्स, नथिंग वॉज, और ऐसा नहीं था, इट इज विथ हिम, विथ एवरी वन फ्रॉम स्क्रैच, एम्प्लॉय से लेकर ऊपर तक, ना किसी को निकाला और ना ही कोई सैलरी, जैसे किसी किसी कंपनी में 40% कम कर दिया, किसी के में 50% कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। दैट्स ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, क्योंकि तब हमें लगता है यार ये देखो कंपनी हमारे लिए काम करते तो हमें कंपनी के लिए काम करना। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स मोर ऑटोनॉमी। एज आई सेड, हर एक इंसान को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने अभी आपको मीनू मैम का एग्जाम्पल दिया, दैट व्हेन वी आर वर्किंग एंड इफ वी आर गिवन सम यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमको ये बोला जाए कि ये काम तुम्हें खुद करना है, देर विल बी नो बडी सिटिंग ऑन योर हेड, कोई आपके सर पे नहीं बैठेगा, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है इफ़ यू आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेचुरल है कि अगर मैं 4 जनों को काम दूंगी, देन ओनली आई विल अंडरस्टैंड कि किसको काम करने की इच्छा है, किसको काम करने का एक मतलब कि एक तो इच्छा होती है, एक होता है लगन, परसिवरेंस, एंड हु इज एबल टू, इन दोनों को मिलाकर कौन काम अच्छे से कर रहा है, दैट इज ओनली पॉसिबल। अगर इफ आई एम इंस्ट्रक्टिंग ऑन ईच इन एवरी स्टेप, तो मैं उसको फ्रीडम दे ही नहीं रही।
सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें आपका पैसा सीधा था। दिस इज डायरेक्टली विच इज़ हिटिंग योर ब्रेन, दिस इज डायरेक्टली विच इज़ इफेक्टिंग योर बिहेवियर। कंपनी में आपका एक खुशनुमा एनवायरनमेंट, an environment where you have the where you are having the opportunity to present yourselves, ये हमारे होते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। And in any company, whether you are working in a